मुझे नहीं लगता मैं कुछ आपको ऐसा मोटिवेशनल ज्ञान दूं, क्योंकि मैं खुद नहीं ले पाया आज तक। मेरी जर्नी में मैंने सिर्फ या तो कॉलेज में गर्ल्स के पीछे भाग के अपने खर्चे उठवाए हैं, या फिर मैंने अपनी जो सेल्स है उसको करने के लिए मैंने अपने डिस्ट्रीब्यूटर, चैनल पार्टनर। ज़बरदस्त होता है कि आप एमबीए इंस्टीट्यूट से करें ना करें, हो सकता है आपका परिवार आपको सिखा के भेजता है कि गल्ला कैसे हैंडल किया जाता है। दैट इज़ वन थिंग दैट मेक्स यू गिव्स यू दैट वन स्टेप अहेड। ये सबसे पहला प्रेशर जो आता है ना, वो हमारे पेरेंट्स के थ्रू ही आता है। कहीं ना हमें अगर सक्सेसफुल बनना है तो हमें अपना लाइफ पैटर्न जो हमारा चलता आ रहा है, थिंकिंग ऑफ पैटर्न लाइक पेड़ पे पैसा उग सकता है, पैसा हाथ का मैल नहीं है। जो कहते हैं ना पैसा हाथ का मैल है, पैसा हाथ का मैल नहीं है, पैसा कमाया जाता है। तो ये थोड़े थोड़े अगर आप अपनी सोच को बदलें। Good afternoon, everyone. Ladies and gentlemen, I am your very proud host for this day. This is Ashita Verma, and I am welcoming each one of you. The Indian Alert presents before you 50 Entrepreneurs of the Year Awards 2023, an initiative by DigiShas Communications. Round of applause, everybody! Come on! We are about to proceed for an interesting panel discussion, and I believe we're gonna learn a lot from them. I always believe in this small, saying where you know first, then you learn, then you execute, then you achieve, and you celebrate. And this is a cycle of our lives. I think we achieve, and again we have to know and learn and do the same thing again and again in order to achieve some historical success. So this panel will be one of the most important, at the same time interesting panels I have at least ever witnessed. So please be ready, and be ready to ask some questions, whatever you have in your head, any queries or any confusions. We will be more than happy to answer that. In order to welcome this panel, I would like to request everybody, you all have to help me. Yes, round of applause everybody for Nikhilesh Tiwari, Space Technology, here on stage to welcome Mr. Lavjeet Alexander. Round of applause everybody. Consulting Editor, India News Business. Round of applause everybody, Mr. Lavjeet Alexander in the house. Thank you so much, sir, for taking your time from your schedule and joining us here. Please join us on stage. And I would like to request Dr. Megha Goyal, Divine Souls, astrologer and Vastu expert. So you can see that diversity. Like Mr. Lavjeet, he is from India News Business, and we have Dr. Megha Goyal, and she is from astrology world. I think we all are interested in that. And before we proceed for the panel discussion, ladies and gentlemen, we also have Ms. Tara Malhotra in house. Round of applause for her world record holder, celebrity, numerologist, astrologer and tarot queen. Can you just wave your hand, ma'am, once? Yes. Round of applause for her. I think we should welcome our panelists with some round of applause first of all. This is so not done, everybody. Help me to welcome Mr. Lavjeet, Dr. Megha from the news world, from astrology world. So much to learn from them. Can we bring back some energy, everybody, in order to welcome them? So I would greet you by Atma Namaste. Atma Namaste means that I welcome you all with the pure soul present in this room. So yes, the way you have started, that the smile, it always matters. And this room is full with happiness, with smiling faces. So I think कि आप लोगों को बहुत कुछ हमसे सीखने को मिलेगा और हमको आप लोगों से भी सीखने को मिलेगा. Thank you very much. Thank you, ma'am, for this very beautiful way to start. So, ladies and gentlemen, this panel discussion is all about entrepreneurship. It's all about entrepreneurs. And as we all know, the room is filled with entrepreneurs. So first of all, from both of you, I will love to know, and I think we all really want to know, what is an success, what is an entrepreneur in your eyes?
or specifically a successful entrepreneur? What do you think? How you explain it, sir? You asking what is success? No, I'm asking in your views, what is like a successful entrepreneur in your eyes? So let's take this question in a different manner, I would say. And if it's okay, can we do this in Hindi and English mixed? Yeah, of Guys? course. ठीक है. I'm just trying to build bridges between India and Bharat. So let's do that. So successful entrepreneur, I believe again when we started, we were talking about happiness, and it is all about satisfaction. It is all about happiness. If something makes you satisfied, कोई ऐसी चीज़ जो कि आपको सेटिस्फैक्शन देती है, आपको लगता है कि हाँ ये अच्छा है या ये मुझे करना चाहिए या इसको करने से मुझे तसल्ली मिलती है, मज़ा आता है, पैशन. हम लोग बहुत सारी चीज़ें आजकल, बहुत सारी वो फिल्म्स और बहुत फैड है वो वाला कि पैशन को फॉलो करिए एंड सक्सेसफुल फॉलो. सो थिंक ऑफ इट लाइक दैट कि जो चीज़, जो काम करने में मज़ा आता है. कई बार सुनने में लग सकता है कि एक काम मज़ेदार कैसे हो सकता है. अगर कोई लोहे का काम कर रहा है, हो सकता है कोई कबाड़ का बिजनेस कर रहा है, स्क्रैप का बिजनेस. ज़रूरी नहीं है कि वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट आपको मज़ा दे, लेकिन ये ओवरऑल एक्सरसाइज, क्योंकि अल्टीमेटली बिजनेस इज ऑल अबाउट क्लोजिंग द एंड्स, पूरा मीटिंग एंड्स, वो सारी चीज़ें कंप्लीट करनी होती हैं. यू हैव टू कंप्लीट दैट साइकिल, buying and selling, negotiations, branding, whatever, marketing, sales, everything. And all those things, when they align and that makes it complete, that is success. And that is when I would say you are a successful businessman, irrespective of the number of zeros in your account. That doesn't count to start with. Once that happens, this multiplication will happen on its own. That is what I understand, and I. Wow, round of applause for sir. The way you defined a successful entrepreneur. I mean, you reminded me of one very beautiful quote that is like you spend 60% of your life at work. So those are 60% should be the happiest moments of your life. Wow, thank you very much. Ma'am, you tell me, हमें बताओ कि आपके लिए एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर कौन है, क्या होना इम्पोर्टेंट है उसके कैरेक्टर में. सो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर सभी हैं. इट इज़ नॉट लाइक कि आप किस लेवल पे बिजनेस कर रहे हैं या आप कहाँ अचीव कर रहे हैं. जब आप अपने लिए, अपने आप को, जैसे आपने स्टार्टिंग में पैट करवाया, हम वो चीज़ भूल जाते हैं क्योंकि हम अपने आप को कंपेयर करने लगते हैं दूसरों से. हम ये भूल जाते हैं हमारी जर्नी कहाँ से शुरू हुई थी और उस जर्नी को हम लेके चले जाते हैं. अच्छा, ये मुझसे आगे कैसे निकल गया, ये मुझसे आगे कैसे निकल गई. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, pat yourself every day. This is a beautiful exercise one should do every morning. Gratitude and saying I love you. See yourself in the mirror and repeat these affirmations, and it will take you on the high reach where you will be a successful entrepreneur. Thank you very much. A phenomenal answer again. Round of applause for ma'am. Thank you. So sir, you come from, of course, the news world. आपके पास stories हर दिन नहीं, मैं कहूँगी हर घंटे आते हैं, है ना. तो ये क्वेश्चन मुझे लगता है हमारे टीम ने बस और बस आपके लिए बनाया है. सो आई रियली वांट टू आस्क, कुड यू शेयर अ पर्सनल एक्सपीरियंस और अ स्टोरी, और मे बी आपने कहीं ऐसा किसी और को ये एक्सपीरियंस करते देखा जहाँ पर यू रियली फेल दैट यू नो हाउ हैविंग द राइट माइंडसेट and right, I will say, amount of efforts in the right direction really helps in the journey of entrepreneurial success. And while you're saying that, I should give reference to a story. Any story. I will repeat my question once again. Could you share? No, I got your point and I got your question. What I'm saying is, it is with me. I would like to share from my own experience. Oh, lovely, lovely. Because I have been an entrepreneur as well, and for good 1 decade I have been an entrepreneur, and another decade I have spent with media as in terms of services. So both I have been on both the sides of the table, and I can be that example where I tell you that having that right mindset is so very required. अगर आपकी वो मानसिकता नहीं है, अगर आप व्यापारी या एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकते हैं, मतलब आपके हेड में नहीं है, और वो बहुत सारी चीज़ें हैं. आई वुड से कि आपकी अपब्रिंगिंग मैटर करती है. और एक हम लोग बहुत एक नॉर्मल बोलचाल की भाषा में अक्सर कहते हैं कि वो MBA जो है, वो जो मारवाड़ी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है,
तो वो एक सबसे ज़बरदस्त होता है कि आप एमबीए इंस्टीट्यूट से करें ना करें, हो सकता है आपका परिवार आपको सिखा के भेजता है कि गल्ला कैसे हैंडल किया जाता है. दैट इज़ वन थिंग दैट मेक्स यू गिव्स यू दैट वन स्टेप अहेड. इसीलिए इफ़ यू नोटिस एंड व्हेन गोइंग बैक टू दैट स्टोरी वाला थिंग, न्यूज़ वाला थिंग, आई वुड से इफ what I have noticed, the biggest of the entrepreneurs, the biggest of the unicorns, उनके ऊपर में अगर आप नाम देखेंगे फाउंडर्स में, तो आपको उसमें अग्रवाल मिलेगा, बंसल मिलेगा, गुप्ता मिलेगा. And So, but here I would like to say, ये हमारे दिमाग में डाल दी गई हैं चीज़ें. बट आजकल अगर मैं एस्ट्रोलॉजी वाइज बात करूँ, इतना कुछ है आपके पास. इट्स नॉट ओनली डॉक्टरेट, इट्स नॉट लाइक इंजीनियर. इफ़ यू टेक इट मी लाइक, सो मैं सर्विस प्रोवाइड करती हूँ. आई एम अ एंटरप्रेन्योर, आई एम अ बिजनेस वूमन, बट आई एम प्रोवाइडिंग सर्विस बाय हेल्पिंग यू ऑल. सो ये हमारे दिमाग में ना हमारे पेरेंट्स डाल देते हैं, जिस कारण बच्चे जो है वो बहुत प्रेशर में रहते हैं कि हमें मेडिकल ही पढ़ना है, हमें इंजीनियर ही करना है. हमारे टाइम पे था, आई थिंक हम सबके टाइम पे होगा, जब आप स्कूल में थे, कुछ नहीं आता तो होम साइंस ले लो. हम सब उस दौर से गुजरे हैं. बैक बेंचर्स थे, कहा जाता था नहीं पढ़ सकते. सो ये जो एक प्रेशर सोसाइटी हमें देती है, या ये सबसे पहला प्रेशर जो आता है ना, वो हमारे पेरेंट्स के थ्रू ही आता है. कहीं ना हमें अगर सक्सेसफुल बनना है तो हमें अपना लाइफ पैटर्न जो हमारा चलता आ रहा है, थिंकिंग ऑफ पैटर्न लाइक पेड़ पे पैसा उग सकता है, पैसा हाथ का मैल नहीं है. जो कहते हैं ना पैसा हाथ का मैल है, पैसा हाथ का मैल नहीं है, पैसा कमाया जाता है. तो ये थोड़े थोड़े अगर आप अपनी सोच को बदलेंगे, बिकॉज ऑल दीज थिंग्स आर कनेक्टेड टू योर एस्ट्रोलॉजी चार्ट, योर प्लैनेट्स. सो इस पे हम अगर अपने लाइफ पैटर्न पे वर्क करें तो आई थिंक हम लोग सब एक एक जना यहाँ पे एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सकता है. ठीक है, ये इंटरेस्टिंग है. और मैम जो कह रही हैं, और अब ये जो हम माइंडसेट की बात कर रहे थे, तो ये अपब्रिंगिंग या आपका जो बैकग्राउंड है ना, वो आपको एक माइंडसेट देता है. अल्टीमेटली योर अपब्रिंगिंग बिल्ड्स यू, it gives you a mindset, but you can do it later as well, so not necessarily. So I'm nowhere saying कि अगर आप नहीं हैं उन परिवारों से जहाँ पे आपको बिजनेस फैमिलीज हैं या वो वाला, तो आप नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं है. लेकिन then you'll have to develop that, you'll have to put in extra efforts. आपको वो चीज़ें सीखनी पड़ेंगी. So मैं as an with my name लवजीत अलेक्जेंडर नहीं सीख पाया, बट डॉक्टर मेघा गोयल जो हैं उनके पास नहीं, मैं आज भी सीख रही हूँ. मेरे भी गुरु हैं. कहते हैं ना कि आप कुछ पैदा होते हो तो सबसे पहला गुरु आपका माँ बाप है, फिर आपके टीचर्स हैं, और आप जिस भी फील्ड में चले जाओ, आपके जो मेंटोर होंगे वो आपके गुरु होंगे. सो कहीं ना कहीं हम एक दूसरे से सीख के ही आगे चलते हैं, साथ में चलते हैं. आई वुड से हमें साथ में चलना चाहिए. आगे निकलने से तो हौड़ी लगती है और कोई सक्सीड नहीं होता. सो साथ में चलना आपके चाहिए. पास तो गाइडिंग साइंस है जो कि बता सकती है कि एक्चुअली करना भी चाहिए या क्या करना चाहिए, या इवन इन बिटवीन कुछ चीज़ें होती हैं. कई बार होता है क्या है कि आप गलत बिजनेस हो सकता है कर रहे हो, तो एक वही ज़रूरी नहीं है कि माइंडसेट आपका एंटरप्रेन्योरियल नहीं है, लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप किस सब्जेक्ट में है, अगेन वो मैटर करता है. हो सकता है कि मैं गलत फील्ड में चला गया हूँ, और कुछ बीच की भी फील्ड्स होती हैं जो कि उस तरीके के बिजनेस नहीं होते हैं, जो मेघा जी शायद बेहतर बता सकते हैं. बिल्कुल बिल्कुल. हम लोग बिजनेस ना चेंज अगर आप करते हो, आज आप फॉर एग्जांपल आयरन का बिजनेस कर रहे हैं या स्टील का कर रहे हैं या आप कोई जॉब कर रहे हैं, इट इज़ ओके अगर आप अपनी बिजनेस लाइन चेंज करते हैं, क्योंकि जब हमारी कुंडली में प्लैनेट्स एक्टिव होते हैं ना, वो हमसे हर तरीके का काम करवाते हैं. सो मैं अपना एग्जांपल बेस्ट दे सकती हूँ इसमें. मेरी जर्नी जो स्टार्ट हुई थी, वो स्टार्ट हुई थी 2015-16 से, जब मैंने एस्ट्रोलॉजी वास्तु गुरु से सीखना शुरू किया. बट उस बीच में कैन यू बिलीव आई वॉज डूइंग अ कोरियोग्राफी विद सरोज खान जी, क्योंकि मेरा वीनस प्लैनेट उस वक्त एक्टिव था. राइट, साइड बाय साइड आई वॉज लर्निंग दिस एस्ट्रोलॉजी वास्तु एंड ऑल. सो इट इज़ टोटली ओके अगर आप एक बिजनेस के साथ दूसरा बिजनेस करते हो, या एक बिजनेस छोड़ के दूसरे बिजनेस में आते हो. प्रॉपर गाइडेंस के साथ हम बिल्कुल समझ सकते हैं. जब मैंने अपने चार्ट को समझा, पढ़ा, तो मुझे समझ में आया ओके मेरा वीनस इज स्ट्रॉन्ग, बट मेरा जुपिटर मेरा लगन है जो मुझे कहता है आई हैव टू डू. जुपिटर इज व्हाट? योर गुरु. सो आपको दूसरों को गाइड करना है, और इसमें वीनस कहाँ मेरा रोल प्ले कर रहा है? ऑफ कोर्स आई एम गिविंग यू सर्विस, तो आई एम टेकिंग इट बैक विद द एनर्जी एक्सचेंज. सो आप एक lovely answer. Yes, thank you. Round of applause for Dr. Megha first of all. Yes, and ma'am, आपने मतलब you answered my question. Even
I question you before. So you answered it in such a graceful manner. Thank you. आपने बहुत अच्छे से आंसर दिया. और मेरी क्वेश्चन आपसे पुट करने वाली थी आफ्टर सर's question, and you explained it in a very graceful manner. Thank you. I'm gonna come back with an wonderful question with you, sir, as you were telling us that you are an entrepreneur also. You were, है ना? So this question is for you. Please tell us what specific qualities or traits do you believe are at the core of an entrepreneurial mindset? How have they helped you to overcome challenges? One I believe, and which is again common between my job, my industry and entrepreneurship, is communication skills. अगर आप एक बढ़िया कम्युनिकेटर हैं, अगर आप बातचीत बढ़िया तरीके से कर सकते हैं, लोगों को बांध सकते हैं, वो आपका क्लाइंट हो सकता है, वो आपका सप्लायर हो सकता है, और आपके जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं. सो इफ़ यू आर अ गुड कम्युनिकेटर, दैट कम्स इन हैंडी. आई हैव सीन पीपल हु आर बैड, otherwise bad people or bad businessmen in terms of so many other things, but they are excellent communicators. They are always having their business card handy, और एक नहीं कई बार चार business cards उनके हाथ में होते हैं, और वो याद रखते हैं, वो इंश्योर करते हैं, वो प्रोएक्टिव होते हैं. सो यू हैव टू बी प्रोएक्टिव विथ योर कम्युनिकेशन स्किल्स. सो अगर मैं बहुत उसको चलती भाषा में कहूँ तो यू हैव टू बी बेशर्म. So don't have any of those inhibitions in this room again, and this is an opportunity for everybody, every one of us. आप लोग entrepreneurs हैं, आपस में कार्ड्स को एक्सचेंज करिएगा, मिलिएगा, भूल जाइए कि सामने वाला क्या करता है, काम का है नहीं है, कब काम आएगा, forget about that. Your networking, your communication skills, आप आपस में जितना मिलते हैं लोगों से, कब कौन से दरवाजे खुलते हैं कोई नहीं जानता. So that is one thing that I believe is will take you to places. Wow, I mean, that was a phenomenal answer, of course. And communication is, I think, the key in any business. So, any business, doesn't matter you're dealing with people, or you're providing service, or you are dealing with goods. I think communication is the hero, and it will be hero always after the product. So thank you for this phenomenal answer. And this reminds me a beautiful quote again, because I am a bookworm, I read a lot. So the three important relationships in our lives. The first one is with the time. Ladies and gentlemen, the relationship with time is the most important relationship in our life. The second one is with money. You know, आपने जैसे शुरू में कहा कि क्यों Agarwals and Goyals and all these people are so good with business, and they're born good because the management with money, they really know how to deal with it. And last but not the least, I will say the relationship with yourself. So three important relationships from my end for being a successful entrepreneur, ladies and gentlemen, is you have to maintain three beautiful relationships. So coming back to astrology, I think we all are really, really excited to learn a lot about astrology. And I have a question for you, ma'am. Please tell us, Vastu and environmental factors are believed to impact well-being. How can entrepreneurs incorporate Vastu principles into their workspaces or business practices to create a more conducive and balanced environment for success and productivity, ma'am? Please tell us. It's a very amazing question. मैं आपको एक बार फिर से आप सभी को बताऊं मैंने क्या पूछा है in a very simple language कि अगर हम सभी entrepreneurs हैं लेकिन कभी-कभी कुछ tips and tricks ऐसे आप दे सकते हो और जो आप सबको दे सकते हो I think उसमें से एक ये होगा कि कैसे आप feminine energy की सेवा कर सकते हो in order to increase I think your Venus जहाँ तक मुझे थोड़ा पता है तो ऐसे कुछ प्लीज़ मैम टिप्स एंड ट्रिक्स हम सभी के साथ शेयर करें बिकॉज मेरे को ऐसा लगता है कि लॉजिक से बड़ा मैजिक होता है So no, logic and that astrology science that both works together. So वास्तु का जब नाम आता है तो लोगों के दिमाग में सबसे पहले एक चीज़ आती है डिस्ट्रक्शन. But वास्तु is not about destruction. वास्तु is built with elements. और यूनिवर्स भी हमारा एलिमेंट्स पे ही काम करता है. इवन हमारी ह्यूमन हम भी जो है एलिमेंट्स से बने हुए हैं. अब कौन से एलिमेंट्स हैं कोई बता सकता है एनीवन सो देयर आर 5 एलिमेंट्स आई एम टॉकिंग अबाउट सो एनीवन कैन नेम देम एनी ऑफ दैट एलिमेंट या प्लीज
water. So one is Jal Tattva. Okay, great. Come on. Fire, great. That is your Agni Tattva. Third, air. That is your Vayu Tattva. Fourth, so जैसे इन्होंने स्टार्टिंग में बोला था, tree is rooted to the earth. Yeah, हमारी mother earth. That is our Bhumi Tattva. And the last fifth, that is anyone? Yeah, please. Space. That is your Akash Tattva. So these 5 elements work beautifully with Vastu. ये 5 एलिमेंट अगर आप अपने वर्क एरिया में अपने चक्रास में मेंटेन कर लेंगे, यू विल अट्रैक्ट द अपॉर्चुनिटी. वी आर मेड ऑफ दीज एलिमेंट्स. हमारे अंदर सारे तत्व हैं. सो नाउ मेडिटेशन इज अ की टू बैलेंस योर 7 चक्रास. आई वुड से जस्ट स्पेंड few minutes, 5 minutes सिर्फ आंखें बंद करके अगर आप अपने घर के नॉर्थ ईस्ट जोन में, बिकॉज नॉर्थ ईस्ट हमें बताता है वास्तु में शिवा का स्थान है. हमारे मंदिर हम बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट में होने चाहिए. क्यों? क्योंकि वहाँ पे सारी एनर्जी, ऊर्जा जो है वो कनेक्ट होती है. सो अगर आप 5 मिनट अपने डेली नॉर्थ ईस्ट में स्पेंड कर लें. अगर आपको कोई लाइफ में कन्फ्यूजन है, जस्ट नॉर्थ ईस्ट में आप बैठ के उस बात को सोचे किस बात का कन्फ्यूजन है, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी. मैं लिख के देती हूँ. इट इज़ दैट जोन ऑफ योर फैक्ट्री एंड इन योर लाइफ. सो नॉर्थ ईस्ट हमेशा आपका क्लटर फ्री होना चाहिए. मेक श्योर कि वो क्लटर फ्री होना चाहिए. वहाँ पे गंदगी नहीं होनी चाहिए. इवन आपका जो घर, आपका ऑफिस है, दैट इज़ योर स्पेस एरिया, वो हमेशा क्लटर फ्री होना चाहिए. सेकेंड वास्तु टिप आई वुड टेल यू हियर, जितने भी बिजनेस ओनर्स हैं उनकी जो फेस सिटिंग होनी चाहिए, दैट शुड बी नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट. दे शुड फेस दीज डायरेक्शंस. इट ब्रिंग्स अपॉर्चुनिटीज. एंड मेक श्योर देयर इज नो वॉल और no door or window behind you, so that it can give you a strength, financial growth. The third tip, मेक श्योर आपका डेस्क जो है, जैसे मैंने क्लटर फ्री का बात किया, ऑर्गेनाइज रहना चाहिए हमेशा. चलो डेस्क की बात हम छोड़ते हैं, बहुत कॉमन सी बात. हम एंटरप्रेन्योर्स या हम सब किस चीज़ का आजकल ज़्यादा यूज़ करते हैं? ऑफिस में हम कम होते हैं, डेस्क पे हम कम होते हैं, बट हमारा आजकल ज़्यादा टाइम किस गैजेट पे गुजरता है? मोबाइल, योर लैपटॉप. मेक श्योर उसमें जंक फाइल्स जो होती हैं ना, जो चली जाती हैं जंक फाइल्स फोल्डर में, वो हमेशा क्लीन होना चाहिए. एंड ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना, ये आपके एनर्जीज़ को, एलिमेंट्स को बैलेंस करती हैं. ये हम अवॉइड कर देते हैं, इन पे ध्यान ही नहीं जाता हमारा. अभी आईफोन निकला, नाउ अगेन न्यू आईफोन निकलेगा. पहला आईफोन हम रख लेंगे, उसको बेचेंगे नहीं, उसको आगे नहीं देंगे, वो बंद होके पड़ा है. उससे पहले नोकिया का फ़ोन बंद होके पड़ा है आपके ऑफिस में, आपके घर में. किसी की स्क्रीन टूट गई आपके फ़ोन की, बट आप फिर भी उस स्क्रीन टूटे हुए फ़ोन से बात कर रहे हो. सो वॉट इट इज़ क्रिएटिंग? इट इज़ हंड्रिंग योर एनर्जीज़. सो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है. एंड ये केसेस जब मैं करवाती हूँ, जब मैं क्लाइंट विजिट पे जाती हूँ और मैं इन जब चीज़ों पे ध्यान देती हूँ कि आप ये क्या कर रहे हो, इसको चेंज करो, आप बिलीव करना 24 आवर्स में उनका जो डील नहीं हो रहा होता था, वो डील हो जाता है. This is the power of vibrations, I believe. So we are vibrating on these 7 elements, right? 7 Wow. chakras, 5 elements. Lovely, lovely. Round of applauses, everybody. Round of applauses. So it was मेघा जी actually. जिस कॉर्नर में कह रही हैं कि जहाँ पे बैठना चाहिए वहीं पे मॉडर्न लगवा लें तो अपने आप ही लोग ज़्यादा वहीं Yeah, बैठेंगे. so you know सबसे what, अच्छा सिग्नल वहीं I have आएगा, done, vibrate. मेरे क्लाइंट को एक नहीं, he was into a politics, उसको सीट नहीं मिल रहा था. What I said, आप अपने नॉर्थ ईस्ट में अपना वो रखिए चार्जर, ओके, दैट बैकअप चार्जर. और नॉर्थ वेस्ट में जिस गवर्नमेंट पॉलिटिक्स से आपको सहायता चाहिए, सपोर्ट चाहिए कि वो आपको अंदर ले ले, वहाँ पे उनका लोगो लगा दीजिए. एंड आज वो बहुत अच्छे पॉलिटिशियंस हैं. सो यस, दिस वर्क्स. सो दिस इज ऑल द बैलेंसिंग ऑफ एलिमेंट्स. Wow, I mean, thank you so much for sharing your insights. Round of applause. And it was a very generic tip for all of us.
Thank you very much. And power of vibration, ladies and gentlemen. And astrology and entrepreneur, I think it can go hand on hand. Yeah, lovely, lovely. Thank you very much. So the next question I have for you, sir, please tell us what in the world of constant change, I was talking about when I started this show that everything is changing and doesn't matter in which industry we are working, every industry really needs creativity and innovation in their possible ways. So in the world of constant change and uncertainty at the same time, we have seen the COVID times. How do you maintain, adaptability, and how you suggest all the entrepreneurs in the room should, grab those wonderful opportunities, and also, adaptability is one of the most important aspect. So it's a part of the entrepreneur mindset. So how to, I will say, go with the changing environment and, adapt the adaptability. So it is said for journalists that we should have a nose for news. हमें खबर जो है सूंघ लेते हैं हम, या वो ताकत होनी चाहिए, या वो अपने आप में स्किल डेवलप करनी चाहिए कि हम चीज़ों को सूंघ पाएँ और समझ पाएँ कि यहाँ पे क्या हो रहा है या क्या होने वाला है, क्या हो सकता है. एंटरप्रेन्योर को ये और ज़्यादा होना चाहिए. सो आई वुड से कि आप अगर एंटरप्रेन्योर हैं तो आपको अपनी इंडस्ट्री का सबसे अच्छा जर्नलिस्ट बन जाना चाहिए, सबसे अच्छा रिपोर्टर. आपको अपने इंडस्ट्री का सब कुछ पता होना चाहिए. थैंक यू सो मच सर. सो अगर आपको अपनी खबरें पता हैं, आपको अपनी इंडस्ट्री पता है, सेक्टर पता है, आप जानते हैं कि आपका कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है, आपकी इंडस्ट्री में क्या चीज़ें नहीं हो रही, और अगर नहीं किया तो समझ लीजिए आप किसी दिन मोज़र बेयर हो सकते हैं, आप किसी दिन जेरोक्स हो सकते हैं, आपकी कंपनी किसी दिन नोकिया हो सकती है, अभी जो हम बात कर रहे थे. और इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें कि कब चीज़ें बदल जाएंगी, कब आप ब्लैकबेरी हो जाओ कोई नहीं जानता. तो अगर आपने समय के साथ में अपने आप को अपडेटेड नहीं रखा, सो रीड एज मच एज यू कैन. आजकल वो चीज़ें नहीं होती हैं, लोग अखबारों को थोड़ा कम ध्यान देते हैं. ट्रेड मैगजीन्स पकड़ लीजिए अपने ट्रेड की, वो ज़रूर सब्सक्राइब करिए. कभी कभी लगता है बहुत फालतू होती हैं, आपके टेबल पे पड़ी होती हैं, लेकिन नहीं, वो फालतू नहीं होती हैं. उसके अंदर में एक नज़र तो मार लीजिए ज़रूर से ज़रूर. अपनी इंडस्ट्री की चीज़ें जो इंटरनेशनली हो रही हों, कई बार लगता है कि ये तो बहुत दूर है, यूएस में हो रहा है, हमसे क्या लेना देना है, या चाइना में हो रहा है, हाउ वाई शुड आई केयर. नहीं, कब वो चीज़ें आ करके और आपके बिजनेस में आ जाएंगी और आपको रिप्लेस कर देंगी, यू नेवर नो. सो बी द बेस्ट जर्नलिस्ट ऑफ योर ओन इंडस्ट्री एंड यू विल सेल थ्रू. Wow, Aman, very informative yet short answer. Thank you very much. And बहुत अच्छे तरीके से आपने हमें समझाया कि adaptability is one of the most important thing. और I really like, I will mark this line that you have to be a reporter of your industry. You have to know from zero. That's the first step. So once you know चीज़ें क्या हो रही हैं, then accordingly you have to adapt. So that is the second step, that flexibility. But उसके लिए अगर आपको पता ही नहीं है कि आपको flexible होना है या मतलब change करना है और किस तरफ change करना है, क्या shift करना है, तो वो अलग. तो सबसे पहली चीज़ तो आपको पता होना चाहिए कि हो ये रहा है. मैं जहाँ से आता हूँ, जिस समय की बात करते हैं, वहाँ पे बॉटल वाटर हम इमेजिन नहीं कर सकते थे कि बॉटल में कोई पानी भर के और 10 रुपए का देगा और कोई ख़रीदेगा. जब हर घर में हर जगह पे प्याऊ होते थे, हर जगह एक 50 पैसे का ग्लास का पानी मिल रहा होता था, एंड जब 10 रुपए की बॉटल लॉन्च हुई एंड वी वर लाइक कि किसका आइडिया है ये. यू नेवर नो व्हेन थिंग्स चेंज, व्हेन थिंग्स ट्वीक सो मच और ड्रास्टिकली. एंड दिस टाइम अभी वर्ल्ड इज चेंजिंग एवरी मिनट. सो वी डोंट हैव अ जनरेशन गैप नाउ, वी हैव आवरली गैप, वी हैव ईयरली गैप. अब एक साल के अंदर में चीज़ें जनरेशन के हिसाब से बदल जाती हैं. तो यू हैव टू बी दैट एजाइल, यू हैव टू बी दैट fast, that quick. Wow, wonderful answer, sir. Thank you very much. And I think here it comes. You have to know, learn, execute, achieve, and celebrate. This is how I think all entrepreneurs should go. Thank you very much. We're learning a lot. I believe we should also share some appreciation in the form of clappings, isn't it, everybody? Thank you. So the next question I have from you, and it's an interesting question. In the pursuit of entrepreneurship, setbacks and challenges are common. We all know that, right? And I think setbacks and challenges really makes us more innovative in creativity and more tough. So how has your understanding of past lives or astrological insights help you or any other entrepreneurs to navigate towards the success? Or is there any
past life karma, really it happens? Please tell us briefly. Round of applause everybody. It's an interesting question and I'm looking forward to it. सो जब तक गिरेंगे नहीं तब तक सीखेंगे नहीं. गिरना बहुत ज़रूरी है और गिर के सीखना बहुत ज़रूरी है. गिर के अगर हार गए तो वहीं टूट गए. डू यू गाइज एग्री विद मी? या सो कभी भी गिरो तो घबराना नहीं. दिस इज़ अ वेरी वेरी पावरफुल स्टेटमेंट. इसको हम एंटरप्रेन्योर के थ्रू भी समझ सकते हैं एंड इसको हम अपनी हीलिंग मोडालिटी, चाहे आप उसको एस्ट्रोलॉजी कह लो, वास्तु कह लो, पास्ट लाइफ कह लो, उससे भी जोड़ सकते हैं क्योंकि दोनों माइंडसेट हमें एक ही चीज़ सिखाता है, टू स्टे पॉजिटिव, राइट. अब सेटबैक सबको मिलते हैं. क्यों एस्ट्रोलॉजी या आप वास्तु या पास्ट लाइफ को चूज़ करें? क्योंकि जब हम गिरते हैं हम डॉक्टर के पास जाते हैं, दवा तो चाहिए और आराम भी चाहिए, गाइडेंस चाहिए. सो इसी तरीके से जब आपको सेटबैक होता है, आपके बिजनेस में डाउनफॉल होता है, तो कहीं ना कहीं आपके प्लैनेट्स उसमें रोल प्ले कर रहे होते हैं. कभी आपको बूम मिलता है तो कभी आपको डाउनफॉल मिलता है. सो दशाएं चेंज होती रहती हैं, नक्षत्र ट्रांजिट में आते रहते हैं. सेकेंडली, हम जब कभी बार बारी फेलियर पैटर्न में रिपीट हो रहा होता है कि चलो एक बिजनेस में कुछ ईयरली आपने आपके नक्षत्र, आपके प्लैनेट्स आपको इम्पैक्ट दे रहे हैं, बट ऐसा कोई होगा, दशा रहेगी 1 साल 2 साल की, उसमें बहुत सारे प्लैनेट्स आपको मिलेंगे जो आपको अच्छा टाइम देंगे, बट ऐसा आ ही नहीं रहा, टाइम अच्छा आ ही नहीं रहा. दैट मीन्स कहीं ना कहीं आपका पास्ट लाइफ का पैटर्न आपके सामने बार बार ही रिपीट हो रहा है. हम सब जानते हैं हम बार बार ही जन्म लेते हैं और हमारे कर्मा हमारे साथ चलते हैं. जब भी कहते हैं अच्छे कर्म करिए सो दैट आने वाले जन्म में आपको सेटबैक्स नहीं हो. सो पास्ट लाइफ हेल्प्स यू टू लर्न दैट लाइफ लेसन्स, टू लर्न दैट लाइफ पैटर्न. जब आप उस पैटर्न को सीख लेते हैं थ्रू पास्ट लाइफ रिग्रेशन, सो आपके सबकॉन्शियस माइंड में आपकी फीडिंग होती है कि आई कैन मूव फर्दर, आई कैन ग्रो फर्दर, आई हैव लर्न दिस लेसन इज़ ओवर. सो उस पॉजिटिविटी के साथ आप जब आगे बढ़ते हैं तो आपको वापस से ग्रोथ मिलनी चालू हो जाती है. सो दैट्स हाउ योर एस्ट्रोलॉजी, पास्ट लाइफ, वास्तु, दे ऑल आर इंटरकनेक्टेड. Each and every science is interconnected because, as I told earlier, all these are elements. So, thank you. Wow. It was honestly an interesting question and answer both. Round of applauses for ma'am, everybody. Round of applauses. Thank you very much. We will know a bit more deeper about this. But coming back to you, sir. In this generation of entrepreneurship, we are seeing unicorns are coming day by day, है ना. बहुत कुछ चल रहा है और मैं कहूँगी हर नई जनरेशन जैसे ही हमारी यंग जनरेशन आ रहे हैं, they are coming with very high tech and at the same time very wonderful technology. I think AI is very nowadays known technology. So what do you see? I mean, क्या आपको लगता है इतनी हाई टेक वे में जाकर हम कहीं ना कहीं मैन पावर को कम यूटिलाइज कर पाएंगे और यू सी लाइक हाई टेक विल इम्प्रोवाइज द मैन पावर बिकॉज आफ्टर सीइंग द AI the world is talking about it. So I really we both I think we all want to know your answer, your insights about it. And that's an excellent question, I must say. और एक बड़ा डिलेमा है ये, बड़ा चैलेंज है बहुत लोगों के लिए ये. But we have faced this a few decades ago, and at least in my generation, because you said generation, and that seems कि मैं थोड़ा पुराने generation का हूँ, and definitely as compared to you मैं भी हूँ, ठीक है. We have seen this, computers आए थे, and we were like, this will take away jobs, लोगों की नौकरियाँ तो गई. आज आप सबके हाथ में वो मोबाइल है जो कि इन अ वे कंप्यूटर का ही एक छोटा रूप है, और आप सबके पास नौकरी है या बिजनेस है या आपके पास आपने बहुतों को नौकरियां दी हुई हैं और लोग इसलिए बेरोजगार नहीं हुए. AI इज अ टूल दैट वी कैन यूज, एंड हर जब टूल को यूज करते हैं, जो मशीन की डेफिनेशन थी जो आमिर खान ने बहुत अच्छे से बताई थी 3 Idiots में, उसको दोबारा से रिपीट तो शायद नहीं कर पाऊंगा, लेकिन इट हेल्प्स अस
टू डू बेटर एनी ह्यूमन बीइंग। तो हमारे लिए मशीनरी या कोई भी टूल या कोई भी इस तरीके की टेक्नोलॉजी है वो हमें सिर्फ बेहतर करती है, और यहाँ पे भी हमें उसी तरीके से लेना चाहिए। वी शुड मूव ऑन। जो चीज़ें वो नहीं कर सकती हमें वो करना होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन ओनली डू सो मच, एंड जो वो कर सकती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हमें सिर्फ उतना उसका इस्तेमाल करना है, उसको हार्नेस करना है, उस टेक्नोलॉजी को, उस ताकत को, ना कि उससे डरना है। और उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके लेट्स मूव ऑन, लेट्स डू इवन बेटर थिंग्स, एंड वी कैन डू दैट। दैट इज हाउ, बिकॉज अगेन वही वाली चीज़ जब हम बात करते हैं ह्यूमन ब्रेन की और उसका कितना कम परसेंटेज अभी हम इस्तेमाल कर पाए हैं, तो जो फालतू काम है उसके लिए इक्विपमेंट को या बिल्कुल। टेक्नोलॉजी को यूज कर लेते हैं। कैलकुलेटर के लिए हमने कर दिया ना, अब हम बड़े कैलकुलेशंस नहीं करते हैं, Yeah. अब हम फोन पे चले जाते हैं। फोन नंबर्स याद नहीं रहते। एग्जैक्टली तो अब हमें जरूरत नहीं है फोन नंबर्स याद रखने की, वो हमारे लिए जबरदस्ती का स्पेस ऑक्यूपाई करता था वो। Lovely. तो उसी तरीके से अब ये चीज़ें आएंगी जो कि चीज़ों को ईजी करेंगी, फास्ट करेंगी, बहुत कुछ उसके अंदर में चेंज करेंगी। लेट्स मूव ऑन, लेट्स यूज इट, हार्नेस इट। ये हमारे लिए वो है जो पहले घोड़े से चलते थे, फिर बाइक से चलते थे, अब जेट से चलते हैं। Just take it as an opportunity, I would say. एब्सोल्युटली। सो दैट Lovely, lovely answer, I will say. I mean, ladies and gentlemen, first of all, please appreciate sir. And I think in a nutshell, you want to say that for innovation and creativity, we are there. For the monotonous job, technology is there in order to minimize. Correct me if I'm wrong. I mean, for the innovative and at the same time creative work, human beings are there. But for the monotonous work, technology is there. Wow, round of applause. What an amazing answer. Thank you. I mean, this session is so amazing, I have to say, and it's very interesting because one side, a very, I will say, veteran from news industry, a veteran from astrology industry. Round of applause for both the panelists, ladies and gentlemen. Round of applause. And okay, so we have one more panelist. I would like to request everyone. First of all, please help me to welcome. सर के लिए थोड़ी ज़्यादा तालियां होनी चाहिए because we were missing sir. Yes, round of applause everybody for Nikhilesh Tiwari, Space Technology, here on stage. Everybody, thank you very much. Can we have one more mic for sir? Thank you very much, sir, for joining us here. Thank you very much. Thank you and sorry for the So first of all, welcome here. This beautiful day, the room is filled with entrepreneurs, and we will love to hear about space technology from you and what is a successful entrepreneur in your eyes. Round of applause for sir. Uh, First of all, thank you. Sorry for the delay. And what is SP technology? So SP is a passion which built to the performance by me, and you can say that I can transform it to the company which is now serving 50,000 plus B2B merchant and having a 2,000 crore turnover per month. And last year we have did 25 crore thousand transactions with the revenue of 151 CR annual revenue, which we have done with SP. So my dream and passion is to serve the underclass population of India. So in this population, we all know that in rural part, people are not active in terms of using banking services. So SP is a platform which help them to get the banking access from their doorstep by their near shopkeepers or any person who wanted to become a shopkeeper of providing banking services, bank branches, mini bank branch concept. So in this concept, we are opening a shop which we convert into the bank, and we have offer there the lots of various B2B services like loan payment, bill payment, money transfer, bank, Jandan Khata opening, and some other services like Swiggy, Zomato payments, and some LIC payments and all. So all these kind of various services which they are not able to get through, like they are not more friendly to using Paytm, PhonePe wallet and all, etc. So they can get it from their nearest doorstep.
So this is SP all about. Wow, thank you very much, sir. And I think you are an entrepreneur, and of course, indeed, a successful entrepreneur. So please tell us, in your eyes, who is a successful entrepreneur? In my journey, I born in a very lower middle class family. और मुझे ऐसा लगता है ऐसा कुछ सक्सेस है नहीं जिसको ये जनता पसंद कर ले वही सक्सेसफुल है. सो आई गेस 0, 0, 0, 1, 0 ये मार्क्स थे मेरे बीएससी फर्स्ट ईयर में. और 1 भी हमें लग रहा मैडम ने इसलिए दिया था क्योंकि मैंने हार्ट बना के उन्हीं का नाम लिखा था. सो आई डोंट थिंक सो आई हैव एनी क्वालिटी टू बिकम अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर. बट इट्स ऑल अबाउट, जैसे मैंने बोला 15 साल नौकरी करी. आई स्टार्टेड एज एन DSC, डिस्ट्रीब्यूटर सेल्स एग्जीक्यूटिव. तो मुझे पता नहीं आप में से कितने लोग जानते हैं टाटा का कॉइन बॉक्स PCO आता था 2003-4 में. 1 रुपये डालो और फ़ोन करो. सो आई हैव सोल्ड दैट ऑन कानपुर. और कानपुर आपको पता है धूल धुआं धोखा. इसके अलावा यूपी के कानपुर में उस समय कुछ नहीं था. सो दिस इज़ ऑल अबाउट सक्सेसफुल जर्नी मंत्रा ऑफ माइंड. मुझे नहीं लगता मैं कुछ आपको ऐसा मोटिवेशनल ज्ञान दूं क्योंकि मैं खुद नहीं ले पाया आज तक. मेरी जर्नी में मैंने सिर्फ या तो कॉलेज में गर्ल्स के पीछे भाग के अपने खर्चे उठवाए हैं, या फिर मैंने अपनी जो सेल्स है उसको करने के लिए मैंने अपने डिस्ट्रीब्यूटर, चैनल पार्टनर. बट आप सब लोग हंस रहे हैं, मुझे देख के बड़ा एम्बेरस हो रहा है कि मैं क्या बता रहा हूँ. बट इट्स अ रियल लाइफ ट्रुथ. मुझे नहीं लगता मैं 4 किताबी बातें रट के आता और बोलता. So I am being now very much focused on transparent and honest, which is I guess the best way to reach anybody's heart. मैं कुछ भी ये चमकाऊं. असली मोटिवेशन है. YouTube के अंदर में जो मिलता है वो हवाबाजी. Right. बहुत सारी चीजें किसने कहीं से पढ़ा और उसको हिंदी में बोला, इंग्लिश उसको में कहीं बोला. हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, जिसको जैसा समझ में आया घुमा फिरा करके बोल दिया. बट एक्चुअल रियलिटी यही है, जब आपके पास पैसा ना हो, थोड़ी सूरत अच्छी दी हो भगवान ने, तो आप लड़की पटाओ, वो थोड़े बहुत कर तो खर्चे उठा लेगी. और हमारे टाइम पे तो 20-30 रुपए की चाउमीन आती थी, 10 रुपए की कोल्ड ड्रिंक आती थी. उस टाइम पे यही रेस्टोरेंट होते थे यूपी में 4-5 में, जिसमें हम लोग पीते थे. सबको पता, ब्लैक कलर के मिरर्स लगा करके यूपी के रेस्टोरेंट ऐसे ही थे. सो दिस इज़ ऑल अबाउट. हमारे पास नहीं था. हम लोग तो शूज़ भी मोची से 4 बार सिलवाते थे. 2 या 5 रुपए का मैक्सिमम बिल बनता था. हार्डली 10 रुपए का बिल बनाता था, लेकिन जूता नया कर देता था. वो सोल भी बदल देता था, नीचे से पूरा वो नया ऐड करा करके. ये जो एंटरप्रेन्योर्स की कहानियाँ होती हैं ना, ये जो उनकी असली ज़िंदगी से जो चीज़ें निकल के आती हैं, ये डॉक्यूमेंट करना बहुत ज़रूरी है. मतलब वो इंडिया अलर्ट इज़ डूइंग, और हम लोग बाकी लोग भी करने हैं, या एज बिजनेस मीडिया मैं करने की कोशिश करता हूँ. क्योंकि और आप लोग करिएगा ज़रूर. ये एक रिक्वेस्ट है मेरी, क्योंकि आप लोग एंटरप्रेन्योर्स हैं और आप लोग अपने अपने क्षेत्रों में काम करते हैं. और कई बार लगता है कि ये नॉर्मल काम है, आप जो कर रहे हैं डे टू डे काम है, आपने बिजनेस अपना सेट किया, उसमें कौन सी नई चीज़ है आपके जैसे बहुत लोगों ने किया. नहीं, आपकी जो लर्निंग्स हैं, आपने जो चीज़ें करी हैं, उसको हल्का मत समझिए, उसको छोटा मत समझिए. वो ह्यूमिलिटी है किसी आदमी की, तो ठीक है कि वो कह रहा है कि ये बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन आसान तो नहीं था. अभी मैं इनसे पूछूंगा कि कितना मुश्किल है, उसके बीच में कितने पापड़ बेले हैं, तो वो कितना पसीना बहता था जब वो 1 रुपये वाला कॉइन जब आप जो बेचते थे, और उसके अंदर में रोड पर क्या क्या मेहनत करनी पड़ती थी. तो वो सारी चीज़ें करके अगर आप यहाँ पहुँचते हैं, आज अगर आप सम्मानित होने जा रहे हैं और एक बढ़िया इस लेवल पे पहुँचे हैं, तो इस बीच में जो जर्नी है वो स्पेशल है. और ज़रूरी नहीं है कि उसमें ज्ञान हो. टिप्स में मत जाइएगा. जो बहुत सारी चीज़ें यूट्यूब पे होती हैं, ये 5 चीज़ें कर लेंगे तो ये हो जाएगा, 5 बजे उठ जाएंगे तो ये हो जाएगा. सबके लिए नहीं काम करता है. मैं नहीं 5 बजे उठूँ, और हो सकता है कि मैं फिर भी बहुत बड़ा आदमी हूँ, और हो सकता है मैं 5 बजे उठ करके रोज़ अखबार बेचता हूँ और मैं कभी बड़ा आदमी ना बन पाऊँ. तो वो दोनों चीज़ें काम करती हैं. सबके लिए टू ईच इज़ ओन है. लेकिन डॉक्यूमेंट करिए खुद के लिए. एक कैमरा ऑन करिए, अपना सेल्फी कैमरा ऑन करिए, एक वीडियो बनाइए और उसको कहीं पे यूट्यूब पे अपने चैनल पे डाल दीजिए. किसी से शेयर करिए, कोशिश करिए. मीडिया नहीं लेता है, आप खुद डाल करके, क्योंकि ये वो जानकारी है, वो चीज़ें हैं जो बाहर जानी चाहिए. मैंने बहुत सारे लोगों से, और क्योंकि बहुत समय से बिजनेस जर्नलिज्म कर रहा हूँ, और ये मुझे कब रियलाइज़ हुआ, जब पोस्ट कोविड के दौर में और उसके बाद जब चीज़ें हुई, और रियलाइज़ हुआ कि जिन लोगों से हमने इंटरव्यूज़ करे थे, जिनसे उनसे बहुत सारी चीज़ें बातचीत करी थी, वो उनके आखिरी इंटरव्यूज़ थे. और वो यंग एंटरप्रेन्योर 40 साल का बंदा, उसकी इतने बड़े बड़े होटल्स, रोजिएट होटल्स की चेन्स, और बर्ड वो गाड़ियों का जो BMW और उन सब की फ्रेंचाइजी, वो सारी चीज़ें. एंड ही इज़ नॉट विद अस एनी मोर. उससे जो चीज़ें सीखी थी वो आखिरी डॉक्यूमेंटेशन वही वीडियो था, वही इंटरव्यू था जो उस दिन हमने किया था. सो
थिंक ऑफ इट कि आप ज़रूरी नहीं है कि वो कोई और करे, आप खुद करके रखिए। और डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन ये कह रहा हूँ कि आपने जो चीज़ें करी हैं ना वो इम्पॉर्टेंट हैं। जो वो कर रहे हैं वो बहुत हंसी के हिसाब से बहुत आसान चीज़ों में, लेकिन ये ह्यूमिलिटी भी है कि मुझे लगता है कि मैंने ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, लेकिन वो बड़ा काम किसी और के लिए हो सकता है जो आज शुरू करने जा रहा है, उस बिज़नेस के अंदर में एंटर कर रहा है, उसको वो जो चीज़ें मिल जाएंगी, उसके मतलब की टिप्स जो मिल जाएंगी। जब आप कहते हैं ना कि खाना बनाने में मम्मी कहती हैं कि तो मेरा रोज़ का खाना है, मेरी दाल है, उसमें क्या अच्छा है, लेकिन आप सामने खड़े होकर के देख लेंगे और एक छोटी सी चीज़ आपको मिल जाएगी कि ये पहले डाला था और ये बाद में डाला था, उससे पूरा फ़र्क आ गया। ये वो वाली So I want to add one line over here. Be true to yourself. Right? Be true to yourself. That is more important in your growing journey. Wow, thank you very much, ma'am. Round of applauses, everybody. Please, round of applauses. It was a beautiful discussion. Thank you very much. So, last question, a very, I will say, a required question to end this session. Because this room is again filled with champions, I will say future of our nation. And जैसे कि हम सभी देख रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि हमारे देश में अभी एंटरप्रेन्योरशिप की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, यूनिकॉर्न्स का ये देश है और हम सभी एंटरप्रेन्योर हैं, चाहे किसी भी क्षेत्र में काम करें। तो एस्ट्रोलॉजी का सहारा मिलेगा तो वहाँ पर फिर लॉजिकली मैजिकल चीज़ें होगी। एंड आप किसी भी हिस्टोरिकल सक्सेस वाले इंसान की जब जीवनी पढ़ते हैं तो आप उसमें एक चीज़ ज़रूर देखेंगे, कुछ भी लॉजिकल नहीं था, सब मैजिकल था। तो मैम, ऑन बिहाफ ऑफ एवरीवन सिटिंग हियर, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, प्लीज़ हमें बताएं कि हम सबको पता है कि करना क्या है, हम सबको पता होता है, लेकिन प्लीज़ आप हमें बताएं कि डे टू डे लाइफ्स में क्या नहीं करना है। एज एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू कुछ चीज़ें होती है जो हमारे कार्मिक अकाउंट में सच में ऐड हो जाती हैं एंड विच ब्रिंग्स very negativity, or I will say negative result in our lives. So all over to you, क्या नहीं करना है ये हमें ज़रूर बताइए day to day life में। Round of applauses for Dr. Megha, everybody. Please appreciate her. So सबसे पहले don't judge anyone. That I always say. किसी को जज नहीं करना चाहिए। आपको नहीं पता उसकी लाइफ में क्या हुआ है। That is the first mantra of your life. Don't judge anyone. Second, आपको अपना घर, अपना वर्क प्लेस क्लटर फ्री रखना चाहिए, वहाँ पे गंदगी नहीं होनी चाहिए। आपका घर वेल लिट होना चाहिए, वहाँ पे जाले नहीं होनी चाहिए, अवॉइड नहीं करना चाहिए कि जाला लगा है, अरे आज दिख गया, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, वो नहीं आता। यू शुड अवॉइड दैट। आपको अपने बाहर के जूते घर में लेकर नहीं आने चाहिए। पहले के ज़माने में हमारे दादा दादी हमें रसोई में भी घुसने नहीं देते थे और अलाउ भी नहीं होता था जूते लेके घर के अंदर आना। हाथ पैर मुंह धो के अंदर घुसते थे, बाहर नल होता था, बिकॉज हम बाहर की ऊर्जा, क्योंकि जब हम चल रहे हैं हमें नहीं पता हमारा जो जूता है, हमारी जो स्लीपर्स हैं, वो किस किस चीज़ पे चल के आगे चली है और हम उस एनर्जी को अपने साथ अपने घर में लेकर नहीं आना चाहते। तो अपने शूज़ आपको घर से बाहर उतारने चाहिए और उनको वेल मेंटेन वहाँ पे कबर्ड में रखने चाहिए, फैले हुए नहीं होने चाहिए। डे टू डे लाइफ में आपको ये जो कहते हैं कि बिना नहाए आप मंत्र जाप नहीं कर सकते, ये गलत है, आप बिल्कुल कर सकते हैं। तो मैं ये मिथ दूर करना चाहूँगी कि हम नहाए नहीं हैं तो हम मंत्र जाप नहीं कर सकते। मेरे को बहुत से लोग बोलते हैं आप रेमेडीज़ दे रहे हैं, हम मंत्र जाप नहीं कर सकते। मैं हमेशा बोलती हूँ आपके अंदर ही शिवा शक्ति है, तो आप चलते फिरते कभी भी भगवान का नाम ले सकते हैं, मंत्र जाप कर सकते हैं। Wow, wow, wonderful. Thank you so much for your wonderful tips. Yes, and ये जो आपने vibration की बात कही, I think one thing I just want to add in order to conclude this, that why nowadays meditation is not only a luxury, it's a necessity, because ये जो vibrations हम accumulate करते हैं बाहर से, meditation बस उसे filter करता है। तो it's a beautiful message. Thank you very much, gentlemen, ladies. Round of applauses for them, everybody. Round of applauses. Thank you so much. We learned a lot from the news world, the business world, and the astrology world. एक बार आप सभी से रिक्वेस्ट है, जोरदार तालियां हो जाए हमारे पैनलिस्ट के लिए, everybody. It was an interesting and informative session. Thank you very much. Please take a seat. Thank you very much.